हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। A hindrance to the good governance. What do you mean to the hindrance to good governance here? A country at the international and national level have a show much serious about their good governance. But how it is that they are not be finding it is easy to provide to all their citizens as a just, equal and free social order. But are the factor that is blocking their road to be good governance. Who is the blocking there is a road of good governance? There are number of factors responsible for the failure to be achieve the desired end, but the following are a major threat to be good governance. There is first year corruption, second year population growth, and third year culture violence. There is the most important hindrance of good governance here. The first topic arrive here, corruption. The corruption is on the legal use of authority for a person gain. There is the most important factor, the gain. There are personal gain. The corruption is a universal disease causing harm to be people and government almost everywhere in the world. However, in there is a country like India, it has assumed the shape of a cancer. They are called to India here a shape of cancer. Since the day of the Kautilya, the issue of ethics and integrated to the government has been major concerned. At the time, the political leader has expressed there is a helplessness to contain corruption by the argument there is the corruption is a worldwide phenomenon. But the question of poverty and the corruption is getting a little more attention than earlier. The exposure of the scam and the demand for the action against the corruption is now increasing. But no step to fight corruption will be effective unless all the corruption, political, economical, moral, and administrative are fought with their sense of commitment and will. In order to meet the threat of the corruption to good governance, the following steps are necessary from here. The first year breaking the annexes between the politicians, bureaucrats and the criminals. There is the most important factor here. And ensuring the cost effective administration of justice, and next year setting up the public interest interrogations and the court at the national, state and the local level. The making right to information more effective and stressless law of the enforcement of agency in the term of autonomy, skill, regional change and awareness of the social problem. And next year forfeitures of the property of the craft and immediately after charges are formed, such as the property can be released only after the person is approved incessant. And improvement to bureaucratics of functioning by way of the simplification of rules, regulation and the procedure of work, and mobilizing their society to support the system of rule of law, and putting on the end to the system of the protagons and the nepotism from a government here organization. The next hindrance here is the population growth. The good governance is concerned not merely with effective law, procedure and practice, but also concerned with the mobilization and utilization of country as a social and economical resource in a manner that benefit all the members of society. However, one find that the development effort have failed to be eliminate poverty, unemployment and literacy and the shares to be all citizens is equitable access to even primary education and health, food, water and a house. From a population of about 35 crore at the time of India as independent to more than 100 crore now is the cost for the concern. Through some state is India as a Kerala, Tamil Nadu, Goa and Manipur has already achieved population stabilizations, and there are still some states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, which will take a long time to stabilize their population. The phenomenon is in growth is a number required source to be sustain them. There is an increasing demand on the land, air and water resource. The providing quarters, education and health facility, food, shelter and employment of their growing a number in the difficulty task before any government in India. Look at our large cities where the concentration of the of very large population pose many problems of health and sanitation, water supply, road, electricity.
There is electricity is the most important problem for the India. In fact, in a many respects, cities like Mumbai, Kolkata, Delhi are increasingly become ungovernable. The rapidly increase of population in fact a mean of the breakdown of good governance. Population can be stabilized through the spread of the education, awareness, health, education, people involvement, and development, etc. The next topic is the culture is a violence. There is the most important topic here. A real short is the illegal force is considered to be a law and order problem. But when is the one look at it is a form of a point of view of the principles of good governance. It become clear that the pace and order is the first step to development. Strikes, riots, terrors, attack other on rent of this is a harmful culture of violence. The government can be focused on economic, social and political development if it is free from to the concern of the threat to public safety and security is the term of life property. Moreover, terrorism is also greatest threat to be rule of law because terror is replaced the law or seeks to be subverted to the law. Terrorism is the hindrance to be a progress. No industrialist is should be willing to be invest in a area which is affected to the violence and terrorist activities. The produce on the adverse impact on employment, health, education, and the provision of other service of the people in the long run. The social life also become a health and the people become almost in a house is a prisoner or they suffer from the mental against there is the different types of it. They lives under to the shadow of the violence and terrorism. The issue of their human right also come to be for terrorists is the sadoms of respect the human right of their common man. But when to the government use of returns is a force content of terrorism at a time human right of common citizen are violated by the state policy. It is required to the clear vision, a courage and understanding to the deal with their means through the is dialogues with their violators of the law and redressal of their genius, grandness and involvement of the neighborhood and the wider international government in the fight against to the terrorism. यहाँ पर जो हमारा पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण आया है स्वच्छ शासन की बाधाएं। देखिए शासन हर जगह सही रूल रेगुलेशन के साथ चलता है लेकिन कुछ बाधाएं जो होती है उसको चलने नहीं देती है और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो करने नहीं देते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अगर आपने देखा होगा कि जब बर्लिन की दीवार गिरी थी जो गलवोचों ने किया था तो उस समय भी बहुत बड़ी विडंबना थी। कहते वो अच्छा करना चाहते थे लेकिन फिर भी जो है उनको अच्छा नहीं करने दिया, इसलिए जो कहते हैं जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई और इससे जो है आपको पता है कि सोवियत यूनियन जो है विभिन्न भागों में विभाजित हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात समझ वाली थी कि जहाँ पर कुछ अच्छा शासन करना चाहता है तो बहुत से बाधाएं आ जाती है, बहुत से लोग जो होते हैं उस पर अपना जो है विचारधारा रख देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी आता है या कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। स्वच्छ शासन की बाधाएं अगर देखा जाए तो प्राय सभी देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शासन को लेकर बहुत गंभीर है और सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे शासन का जो है प्रावधान किया जाए, लेकिन वो अपने नागरिकों को न्याय, उचित, सम्मान एवं स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था कैसे उपलब्ध करवाएं, यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी करती है। वो कौन से कारक है जो स्वच्छ शासन में बाधाएं उत्पन्न करती है और इसके अनेक कारक उत्तरदायित्व हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो है यहाँ पर प्रमुख हैं वो है भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि और हिंसा की संस्कृति। देखिए ये चीज़ें जो होती है कभी भी अच्छे गवर्नेंस चलाने के लिए जो है बाधाएं उत्पन्न करने के लिए जो है पर्याप्त है। कहते हैं कहीं अगर भ्रष्टाचार उपलब्ध है तो वहाँ अच्छा गवर्नेंस नहीं हो सकता। जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है तो ये भी बहुत बड़ी बाधा बनती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है हिंसा की संस्कृति, क्योंकि आपको पता है कि भारत में आए दिन देखने को मिलता ही है, हिंसा आए दिन जो है कहीं ना कहीं भड़कता ही रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे समक्ष भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार अधिकार को अवैध प्रयोग करना, यानी कोई भी अधिकार आपको मिला हुआ है तो आप गलत प्रयोग करते हो और ये राजनीतिक में जो देखने को तो है आम मिलती रहती है कि लोगों के पास कोई पद मिला हुआ होता है तो उसका गलत प्रयोग करना एक स्वाभाविक बात बन गई है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लाभ करना चाहता है। भ्रष्टाचार लगभग पूरे विश्व में व्याप्त एवं सार्वभौमिक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है। इसे जनता और सरकार दोनों की हानि होती है, सरकार की हानि होती है उतना ही जनता की भी हानि होती है। भारत जैसे देशों में यह कैंसर की तरफ व्याप्त हो चुका है। कौटिल्य के समय चरित्र और सत्यनिष्ठा प्रमुख परोपकार थे।
अनेक बार राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार के आगे अपने हाथ खड़े कर देते हैं और इसे विश्वव्यापी समस्या कहकर पल्ला झाड़ देते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो सारे लोग इसी में व्यप्त रहते हैं और ये जो है अपना पल्ला झाड़ने की जो प्रवृत्ति बना रखे हैं वो बहुत बड़ी विडंबना है। हर सरकार जो है दूसरे सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि भ्रष्टाचार उनके समय में था, लेकिन क्या उनके समय में नहीं था? क्या उनके समय में था नहीं? तो ये बहुत बड़ी यहाँ बात आती है कि किनके समय में था। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। होते सभी के समय में है, लेकिन वो जो होते हैं अपना पल्ला झाड़ने के लिए सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। पहले की अपेक्षा अब इस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। घोटाले के पर्दाफाश और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन तब तक इसके लिए कोई भी कदम कारगर साबित नहीं होगा जब तक इस सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और प्रशासनिक ने यह पूरी दृढ़ता और इच्छा शक्ति से नहीं लड़ा जाएगा। इस प्रक्षेपण में यह पता चलता है कि अच्छे शासन के लिए जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्न आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पहली कदम तो यही है कि राजनीतिज्ञों, अफसरों और अधिकारियों के बीच गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार का कारण कोई आम गरीब जनता नहीं है। जो बड़े बड़े यहाँ राजनीतिज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं और अधिकारी के बीच जो गठजोड़ होते हैं उसको तोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर भ्रष्टाचार आप दूर करना चाहते हो तो इनको भी जो है पारदर्शिता के रूप में देखना चाहिए। न्याय सस्ता होनी चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति जो है अपना अधिकार रख सके और अपना न्याय प्राप्त कर सके। देश, राज्य, स्थानीय स्तर पर जनहित याचिकाओं के लिए अदालतों का गठन करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। सूचना के अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हर क्षेत्र में जो है इन सारी प्रॉब्लमों का जो है कदम दर कदम जो है शोषण किया जा रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो कानूनी लागू कराने वाली संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए कि उस पर किसी प्रकार का दबाव न हो। आपने देखा भी होगा कई जगहों पर जो न्यूज़ भी होती है किसी एक दो मंत्री की ही जो है पाठ कर रही होती है। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जो अभियोग लाने के बाद अवलंबन जब्त कर लेना चाहिए। यह संपत्ति तभी लौटानी चाहिए जब वो निर्दोष सिद्ध हो जाए। नौकरशाहियों की जो है कार्यशैलियों को सुधारने के लिए नियम, उपनियम और जो है कार्यशील को जो है सरल बनाना चाहिए। समाज को नियम कानूनों के जो है परिपालन हेतु लंबबद्ध करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। सरकारी संगठनों में भाई भतीजावाद को समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं ये सारे कारण हैं जिसके वजह से जो है भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है, हमारा देश को खोखला किया ही जा रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जनसंख्या वृद्धि। देखिए, स्वस्थ शासन का सरोकार केवल प्रभावी कानून से नहीं है, प्रबंधियों और उनके क्रियान्वयन से भी नहीं है, बल्कि उसका सरोकार देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों की गतिशीलता उपयोग से भी है। जितने हम अपने देश के संसाधनों को जो है उपयोग करेंगे उतना जो है ये देश खोखला होता चला जाएगा, ताकि उसका लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को मिल सके। देखिए, हमारा कोई भी संसाधन होता है वो सभी व्यक्तियों के लिए होता है, हर व्यक्ति जो इसका सुचारू रूप से प्रयोग कर सके। इस प्रकार पता चलता है कि विकास की प्रयास गरीबी और बेरोजगारी मिटाने का सशक्ति के लक्ष्य को हासिल करने और सभी नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा एवं स्वच्छ खाद्य, पेयजल और आवास उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। ये हर सरकार कहती है कि हम जो है गरीबी दूर करेंगे, हम पेयजल बनाएंगे, हम आवास लगाएंगे, खाद्य उत्पादन करवाएंगे, लेकिन कहते हैं इस सभी चीज़ों में वो सदैव असफल ही रहते हैं और कोई भी सरकार जो है इस पर अच्छा से अच्छा कदम नहीं उठा पाया है, चाहे कोई भी सरकार हो। इसका मुख्य जो है कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग जो कहते हैं 35 करोड़ की जनसंख्या का बढ़कर वर्तमान में जो है 135 करोड़ से ऊपर बढ़ चुकी है। भारत कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जनसंख्या में स्थिरीकरण में अधिक समय ले रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी देखा जाए तो जनसंख्या कंट्रोल जो है कई राज्य नहीं करने के लिए अग्रसर है। बढ़ती जनसंख्या को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसमें भूमि, जल, वायु संसाधन की वृद्धि आवश्यक होता है। भारत में किसी भी सरकार के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य, आवास एवं रोजगार की उपलब्धता कराना एक चुनौती होगी। यदि हम भारत के किसी भी महानगर को देखें तो ऐसा लगेगा कि वहाँ अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़कें, विद्युत की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो बात किया गया है सारे आज विपरीत है। अगर हम पेयजल की बात करें तो सरकार पेयजल फ्री करती है, ठीक है, सड़कों का मरम्मत कभी करती नहीं है
और विद्युत की समस्या क्यों नहीं उत्पन्न होगी? जब सरकारों ने फ्री कर दिया है विद्युत, तो विद्युत फ्री का आप अर्थ समझते ही हो कि फ्री का अर्थ होता है कोई कदर नहीं करना, कोई उसका सम्मान नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी था, जो जनसंख्या के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों पर सरकार जो है बिल्कुल ही अपना जो है राजनीतिक सिक्का चला रही है। वास्तव में एक अच्छे शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में शासन करना कठिन होता जा रहा है। जनसंख्या में ही रही तीव्र वृद्धि से वास्तव में अच्छे शासन पर विराम लगा दिया है। जनसंख्या वृद्धि को शिक्षा, प्रसार, जागरूकता, लोगों की सहभागिता एवं विकास द्वारा स्थिर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात जो किया जा रहा है शिक्षा का प्रसार। अगर आप शिक्षा को देखोगे तो आज स्कूल और में जाकर देखो, आपका शिक्षा का स्तर जो है आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। मैंने एक बात नोट हमेशा किया है कि सरकार कहती है कि हमारा शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत अच्छी दी जा रही है। तो सरकारी स्कूलों में जब अच्छी शिक्षा दिया जा रहा है, तो उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये उत्तर मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप सब जगह अच्छे शिक्षा दे रहे हो, शिक्षा के मॉडल पे आप अपना सिक्का चला रहे हो, तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? क्या कारण है? क्या गरीब का बच्चा गरीब है और अमीर का बच्चा अमीर बन गया? तो ये बहुत बड़ी जो है ये ऊंच नीच की भेदभाव आपके अंदर ही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है जागरूकता। कहते हैं जागरूक व्यक्ति तब होता है जब वो शिक्षित होता है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का लेवल इतना कम गया है कि एक बच्चा 10वीं भी पास कर लेता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं होता है, इवन कि उसको लिखने तक भी नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार इस पर अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन कहते हैं ये विकास जो है बिल्कुल जीरो के समान है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं अगर इन चीज़ों को शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, तभी जो है लोगों का भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिंसा की संस्कृति। आखिर हिंसा की संस्कृति का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कि भारत जब से आज़ाद हुआ है उस समय से हिंसा की प्रवृत्ति जो है चलती चली जा रही है। इवन कि अंग्रेज ने भी इसी का ही सहारा लिया था, जिनका उनका नीति बनाया था कि फूट डालो राज्य करो की नीति। उनको पता था कि भारत के लोग जो है उनको धर्म, उनकी जाति पर जो है और भाषा के आधार पर उनको भड़काया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, वो अभी तक अपने आप को भाईचारे की भावनाओं में बंधे हुए नहीं हैं। तो इसका फ़ायदा जो है अंग्रेजों ने बहुखूबी निभाया और उन्होंने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर भारत में कई सालों तक राज्य किया और अपना पैठ जो है जमाया। हिंसा की संस्कृति के अंतर्गत यही बात आता है कि बल का अवैध प्रयोग कानूनी व्यवस्था की समस्या है। लेकिन यदि कोई इसे अच्छा शासन के दृष्टिकोण से देखे तो स्पष्ट हो जाता है कि शांति और कानून व्यवस्था विकास के प्रथम सोपान के रूप में देखा जा सकता है। हड़तालें, दंगे, आतंकवादी हमले इस हिंसा की संस्कृति के हानिकारक तत्व के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भारत में अगर देखा जाए तो हड़तालें और दंगे एक आम सी समस्या बन गई है। छोटी छोटी बातों पर जो है लोग भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है हमारे जो सरकारी संपत्ति होती है उसको तहस नहस कर देती है। तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर तब अच्छी तरह से ध्यान दे सकती है जब जान माल की सुरक्षा आदि की ओर से निश्चित हो। इसके अतिरिक्त आतंकवाद भी कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारण के रूप में देखा जा सकता है और इसे विश्वव्यापी स्तर पर जो है इस पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकवाद विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक के रूप में देखा जा सकता है। जो क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं वहाँ पर कोई भी निवेश पूंजी नहीं लगाना चाहता है और इसका सीधा प्रभाव वहाँ के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं पर लंबे समय तक पड़ता है। वहाँ का समाजी जीवन थम सा जाता है और लोग घरों में कैद हो जाते हैं एवं उनके मन मस्तिष्क और आतंक की काली छाया मंडराती ही रहती है और लोग जीना चाहते हैं पर जी नहीं सकते हैं। मानवाधिकार के मुद्दे का भी सामना करना पड़ता है। आतंकवादी जनसाधारण की जो है मानवाधिकार का जो है कदाचित ही आदर करते हैं, किंतु जब सरकार आतंकवाद को दबाने के लिए सख्ती करती है तो राज्य पुलिस द्वारा जनसाधारण के अधिकारों का हनन भी हो जाता है। इसके लिए स्पष्ट दृष्टिकोण, साहस, समझ की जरूरत है, जैसे आपसी बातचीत द्वारा इसे मामले को सुलझाया जा सके। इसके लिए उपयुक्त जन शिकायतों का निवारण करना, पड़ोसियों की सहभागिता और आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बात आती है कि हमें शिकायत का निवारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कोई भी हो, इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें भागीदारी देना जरूरी है। आतंकवाद के विरुद्ध हर संभव कोशिश करना है जिससे आतंकवाद हमारे देश में पनप न सके। कहते हैं आतंकवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो यंग लोग हैं उनको अवहेलना करना होता है। सरकार को अवहेलना उनको नहीं करना चाहिए, उनको जितना हो सके जॉब प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कहावत भी है
खाली मन शैतान का घर। कहते हैं इनको जॉब नहीं मिल पाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं और इनको कोई अच्छा जॉब नहीं मिलता है और ये गलत जो है प्रवृत्तियों में सम्मिलित हो जाते हैं और देश के प्रति ही जो है गतिविधियां करने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा अगर बात यहाँ देखा जाए तो यही है कि लोग बेरोजगारी की समस्या के कारण इस आतंकवादी जो है रूपरेखा में उतर जाते हैं। तो सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट यही बात चाहिए कि जितना हो सके नौजवानों को जो है जॉब उपलब्ध कराना चाहिए और उनको खाली नहीं रहने देना चाहिए। हर क्षेत्र में जो है उनका जो है शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सरकार के लिए भी और जो है लोगों के लिए भी।